बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum dear students. Hope you all are fine with the grace of Almighty Allah. From the Educators Online Sport, I am your maths teacher with lesson number 7 and unit number 12. Today we are going to start unit number 12. Unit name is angles. Material required for this lecture: lead pencil, eraser, highlighter, class 6 mathematics book, notebook, blue marker, blue pen, and a ruler. Dear students, here are some objectives of this lesson for you. After taking this lecture, you will be able to name angles according to their size, to name pairs of angles according to their placements, and angles at a point add up to 360 degree. Now open page number 166, write day, today's task and date, and highlight the following lines which we highlighted on this page. Now we will discuss these highlighted lines in detail. An angle refers to the space in degrees between two intersecting lines or surfaces at or close to the point where they meet. एंगल हमारे पास दो लाइंस के दरमियान में है जिसका कॉमन पॉइंट होगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्टिंग? कि दो लाइंस एक दूसरे को टच करें, दो लाइन एक दूसरे को कट करें. तो एंगल्स हमारे पास दो लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर है और उनके दरमियान हम इसको मेजर कैसे करते हैं? तो इसको हम मेजर डिग्रीज में करते हैं. Describing an angle, how we can describe an angle? In geometry, an angle is formed by two different rays or line segments starting from the same point. Geometry में एंगल हमारे पास दो लाइन या रेज से बनता है जो एक ही कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होते हैं. द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेज इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल एंड द टू रेज आर नोन एज इट्स आर्म्स. जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होगा या कॉर्नर होगा दोनों लाइंस का, वो हमारे पास वर्टेक्स कहलाता है, और दोनों जो रेज या लाइन सेगमेंट है आपके पास, वो हमारे पास उसकी आर्म्स होंगी. दिस इज द फिगर ऑफ एन एंगल. यू कैन सी कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड vertex and both rays are called its arm. Next one is an angle is represented by the symbol. जो हमारे पास एंगल के लिए सिंबल यूज होता है वो हमारे पास ये है, and three letters that denote the end point of two arms are and the vertex. Open page number 167, write date, today's task and date, and highlight the following line. Now we will discuss this point in detail. Comparison of angles. An angle is the amount of turn between two straight lines that have a common vertex. This turn determines the size of an angles. Angles हमारे पास दो लाइनों के दरमियान में जो टर्न आता है उसको हम लोग एंगल कहते हैं, और इनमें एक कॉमन पॉइंट है वर्टेक्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन एंगल्स डेफिनेशन. दिस टर्न डिटरमिन्स द साइज ऑफ द एन एंगल. और इन्हीं लाइनों के दरमियान में जो हमारे पास टर्न है उससे हम एंगल का साइज फाइंड करने हैं. इन दोनों लाइंस के दरमियान में जो टर्न आएगा, जो गैप आएगा, जो डिस्टेंस आएगा, वहां पे हम लोग इनकी मेजरमेंट लेंगे कि एंगल कितने डिग्री का है. Dear students, please open page number 168, write date, today's task and date, and highlight all these lines. Now we will discuss all these line or angles in detail. Angles are classified according to their size. Angles को हम लोग कैसे कैटेगराइज करते हैं, कैसे उनकी एग्जाम बनती है? We will classified with their size. साइज के हिसाब से हम लोग उनको कैटेगराइज करते हैं, उन्हें क्लासिफाइड करते हैं. राइट एंगल, और राइट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. राइट एंगल हमारे पास कितने डिग्रीज का है? 90 डिग्री. एग्जैक्टली 90 डिग्री, ना ही एक डिग्री ज्यादा है ना ही कम है. वी कैन यूज प्रोट्रैक्टर फॉर ड्रॉइंग द राइट एंगल, और इसके अलावा हम स्केल से भी राइट एंगल ड्रॉ कर सकते हैं. राइट एंगल मीन एक लाइन दूसरी लाइन की परपेंडिकुलर होगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी. द आर्म्स ऑफ राइट एंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Number 2, acute angle. What is the meaning of acute angle? An acute angle is less than 90 degree. Acute angle is less than 90 degree. 90 से छोटा होगा. Greater than 0 degree. 0 से वो स्टार्ट होगा but less than 90 degree.
Third one is obtuse angle, and obtuse angle is more than 90 degree but less than 180 degree. Obtuse angle हमारे पास 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, वो हमारे पास कौन सा एंगल है? obtuse angle है. Straight angle, a straight angle is of 180 degree same as it is right angle. जैसे right angle था हमारे पास exactly 90 degree, ऐसे straight angle हमारे पास है एग्जैक्टली 180 डिग्री, ना ही 1 डिग्री कम होगा और ना ही 1 डिग्री ज्यादा होगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री. स्ट्रेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेट एंगल? स्ट्रेट एंगल मीन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन जो है वो हमारे पास एग्जैक्टली 180 डिग्री की होगी. आ स्ट्रेट एंगल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. द आर्म्स ऑफ स्ट्रेट एंगल एक्सटेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन. हम इसकी आर्म्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. Reflex angle, our reflex angle is more than 180 degree but less than 360 degree. Reflex angle हमारे पास 180 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा. Dear student, remember one thing, all these angles will drawn in a circle. हमारे पास ये जितने भी एंगल्स है एक सर्कल के दरमियान में ड्रॉ होते हैं. एंड आ कंप्लीट टर्न ऑफ आ सर्कल इज 360 डिग्री. और एक सर्कल में हमारे पास कितनी डिग्रीज होती हैं? 360 डिग्रीज. ठीक है, एक सर्कल में हमारे पास कितनी डिग्रीज है? 360. और सेमी सर्कल में हमारे पास कितनी डिग्रीज होती हैं? 180 डिग्री. कंप्लीट डिग्रीज इन अ सर्कल 360 एंड डिग्रीज इन अ सेमी सर्कल्स आर 180 डिग्री. नाउ लास्ट वन इज कंप्लीट एंगल. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस वन एंगल. अ कंप्लीट एंगल मेजर्स 360 डिग्री. कंप्लीट एंगल में कितनी डिग्रीज होंगी? 360. और 360 डिग्रीज किसमें है? अ कंप्लीट इन अ कंप्लीट सर्कल. हाउ मेनी डिग्रीज इन अ सर्कल? 360. A complete angle is an angle where one line segment has turned a full circle and comes to rest on the first line segment. The two arms of a complete angle coincide. ठीक है, हमारे पास जो जहां से हम लोगों ने उसको लाइन को ड्रॉ करना शुरू करना है, दोबारा हमारी लाइन वहीं पे आके स्टॉप हो तो हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल आएगा. एंड हाउ मेनी डिग्रीज इन अ कंप्लीट सर्कल? 360 डिग्रीज. ये हमारे पास वी कैन से दैट अ सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. एक सर्कल में कितनी डिग्रीज होती हैं? 360 डिग्री. और अ सर्कल इज आल्सो कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल. पेज नंबर 169, राइट डे, डेट and today's task and highlight the following point. One important note on this page is all adjust angles are not necessarily complementary. ये जरूरी नहीं है कि तमाम जो adjust angle हो वो complementary angles भी हो. Next one is adjacent angles. Adjacent angles are two angles that have a common vertex and a common side but do not overlap. Angle XOY and angle YOZ are called adjacent angles because they have a common vertex O. They have a common arc OY. OX and OZ lie on opposite sides of OY. Supplementary angles. What is the meaning of supplementary angles? Supplementary angles are two angles with a sum of 180 degree. Supplementary angles हमारे पास वो दो angles होते हैं जब हम उनको ऐड करें तो उनका आंसर 180 डिग्री के इक्वल है. मीन दो एंगल्स हैं, हमने उनको ऐड किया है तो आंसर क्या होगा? 180 डिग्री. यू कैन सी इन फिगर एंगल AOB एंड एंगल BOC आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल. ये दोनों एंगल्स हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे बिकॉज देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि उनका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? 180 डिग्री. लीनियर पेयर, टू एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ they are both supplementary and adjacent, or simply we can say that a linear pair is a pair of adjacent angle formed when two lines intersect. Complementary angles, two angles are complementary if they are adjacent and their sum is 90. कंप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे पास वो एंगल्स होते हैं अगर हम दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर 90 है. फॉर एग्जांपल 45 प्लस 45 आंसर इज 90. अगर आंसर 90 के इक्वल आ रहा है तो हमारे पास एंगल क्या होंगे? कंप्लीमेंट्री होंगे. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और वर्टिकल एंगल्स. व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट द पेयर ऑफ एंगल्स विद द कॉमन वर्टेक्स लेइंग ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द वर्टेक्स फ्रॉम अ पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. Meaning vertical angles are angles opposite each other where two lines cross.
measurement and construction of angles, how we can measure the angle or how we can construct the angle. A protractor is a convenient geometrical instrument to measure an angle accurately. protractor हमारे पास सबसे easy जो इंस्ट्रूमेंट है जिसे आसानी से हम लोग अपने एंगल्स को मेजर भी कर सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं. फॉर ड्राइंग वी कैन ऑल्सो यूज कंपस. हम एंगल ड्रॉ करने के लिए कंपास को भी यूज कर सकते हैं. इट हैज टू स्केल रेंजिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री. यहाँ पे हमारे पास 2 स्केल यूज होंगे जो 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक है. रनिंग इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब प्रोट्रैक्टर में हमारे पास डिग्रीज जो है वो क्लॉकवाइज भी हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी है. मीन 0 till 180 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड एंड 0 till 180 फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड. दोनों डायरेक्शन हमारे पास दी गई है. आफ्टर अ ब्रीफ डिस्कशन, नाउ डियर स्टूडेंट्स प्लीज असेस योरसेल्फ. एन एक्यूट एंगल इज लेस देन डैश. A reflex angle is more than dash but less than dash. Reflex angle more than किससे बड़ा है but less than dash और किससे छोटा है, आप fill in the blank में वो दोनों आंसर लिखेंगे. A complete angle measures dash. complete angle में कितनी डिग्रीज होती हैं या कितनी डिग्रीज में मेजर किया जा सकता है. A right angle is of dash. right angle में कितनी डिग्रीज होती है और how many degrees in a right angle. Two angles are complementary if they are adjacent and their sum is डैश. हमारे पास कंप्लीमेंट्री एंगल कब होंगे, जब उनको दो एंगल्स को जब ऐड किया जाए तो वो किसके इक्वल आना चाहिए. Dear students, here are some tasks to do for you. Number 1, make a title page of unit number 12. Topic, definition, question answer and worksheet. And number 2, write the types of angle on notebook from page number 168. हमारे पास पेज नंबर 168 पे types of angles given है जो आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे. I hope today's lecture was helpful for you. Allah Hafiz till next lecture.